ہو گئی بس آپ پانچ ہی منٹ آ جاؤ جی یار یہ نا ہلکر بابے ذوق دا ایک سیشن ہے وہ میں سن رہا ہے میں کچھ بات کروں سر اگر شروع ہو گیا جی سیشن؟ جی 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 السلام علیکم۔ غزل جو ہے محترمہ فوزیہ شیخ صاحبہ کی، اس کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک روایتی انداز ہی لیے ہے، اور چونکا دینے والے عناصر ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہیں، اور اس کا جو پہلا، تیسرا اور آخری شعر ہے میرے خیال میں وہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے۔ یہ میں پہلے مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور ساری غزل جو ہے وہ دو قسم کے پہلو لیے ہوئے، ایک معاشرتی اور ایک نفسیاتی۔ اگر ہم اس کے اشعار کو دوسرا، پانچواں اور چھٹا دیکھیں تو یہ معاشرتی حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کا جو پہلا، تیسرا اور چوتھا اور ساتواں شعر ہے یہ نفسیاتی پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے۔ جیسے پہلا شعر ہے، اندر سے اگر دل کا اشارہ نہیں ہوتا پھر کوئی ہمارا بھی ہمارا نہیں ہوتا، پیور ایک نفسیاتی پہلو ہے جو نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور طرح سوچیں، ہمارے تو پہلے ہی ہمارے ہوتے ہیں، شاید یہ غیر کی بات نہ کی گئی ہو کہ غیر جب تک ہمارے دل میں نہیں اترتا جب تک دل اسے قبول نہ کرے۔ ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، اس تناظر میں دیکھیں وہ تو پہلے ہی ہوتے ہیں، ہاں وہ نکل جاتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے زندگی میں۔ ایک سوال ہے اس پہلے مطلب پہ۔ دوسرے میں آنچل کا تقدس، میرے خیال میں آنچل ایک رومانوی لفظ ہے، یہاں اگر چادر کا لفظ آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ شعر اس لحاظ سے بنتا ہے معاشرتی حوالے سے ہمارے، اگرچہ اس میں وہ کہہ لیں کہ جو تمام موضوعات پہلے ایک جگہ پہ ملتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اچھا نبھایا گیا ہے کہ بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا۔ اس پہ جو میری رائے ہے وہ یہ کہ آنچل کی بجائے چادر لفظ زیادہ بہتر ہے۔ ہر شخص کو پلکوں پہ جگہ دی نہیں جاتی، ہر شخص ہمیں جان سے پیارا نہیں ہوتا، یہ میرے خیال میں ایک مطلع ہی کی باز گشت ہے کچھ اور طرح سے۔ بے وجہ اداسی کو مسلط نہ کرو تم، میں ادنا سا طالب علم ہوں، میرے خیال میں تو تم یہاں ضروری ہے۔ باقی محترم ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب بیٹھے ہیں، بقیہ لوگ جو اوزان کو جانتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے محترم شہزاد صاحب نے کہا کہ شاید تم اضافی ہے تو یہ وہ اس پہ بات کریں گے، میری رائے میں تو تم آنا چاہیے۔ اچھا، اس پہ جو سوال ہے، یہ غزل سوال پیدا کرتی ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ بے وجہ اداسی کو مسلط نہ کرو تم، تو کیا وجہ کے ساتھ اداسی کو مسلط کر لینا چاہیے؟ یہ اس پہ سوال ہے۔ اور پھر خوددار بھی ہوتے ہیں کئی اہل وفا میں، سب نے ہی تو دامن کو پسارا نہیں ہوتا۔ یہ شعر محترمہ فوزیہ شیخ صاحبہ جو ہے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن جو ہمارے پاس سامنے غزل ہے اس میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں خیال تو اچھا ہے لیکن میرے خیال میں تین لفظ جو ہیں وہ اس کو گہنا رہے ہیں۔ جیسے کئی اہل وفا میں، یہ میں کا لفظ جو ہے یہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کسی طرح سے، اور سب نے ہی تو، یہ سب نے ہی کی بجائے سب ہی نے تو اگر کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ اور پسارا کا لفظ میرے ذہن میں پاؤں پسارنا آ گیا، تو وہ دامن بڑا خوبصورت لفظ ہے، تو پسارنا شاید کافی کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ لفظ میرے خیال میں اس کو گہنا رہا ہے تھوڑا سا۔ پھر اپنوں کے رویوں سے بھی تھک جاتا ہے انسان، خاموش جو ہوتا ہے وہ ہارا نہیں ہوتا۔ دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، پہلے کو بدلنا چاہیے، جیسے اپنوں کے رویوں، یہ دو دفعہ اپنوں اور رویوں میں نون غنہ جو بار بار دو دفعہ منہ میں آتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو پڑھنے میں دشواری کا اس کا لگتا ہے احساس۔ یوں ہو سکتا تھا کہ اپنوں کے رویے بھی تھکا دیتے ہیں آپ، یا اس طرح سے کسی اور انداز میں اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہے کہ ممکن ہے تیری آنکھ کا دھوکا ہو یہ فوزی، ہر چیز جو روشن ہو ستارہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو اس میں پہلی تو گرامر کے لحاظ سے، یہ محترم جو ہمارے اردو کے یہاں بہترین اساتذہ موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے اور بتائیں گے بھی، میری بھی رہنمائی فرمائیں گے کہ یہاں گرامر کے مطابق ہر چیز جو روشن ہو ستارہ نہیں ہوتی، all that glitters is not gold، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سونا نہیں ہوتا نہیں ہم کرتے، تو یہ گرامر کے لحاظ سے میرے خیال اس میں ایک پرابلم آئی ہے۔ اور باقیہ یہ شعر بھی بالکل اسی طرح سے ایک ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم دیکھیں مطلع کے لحاظ سے یا دوسرے، تو یہ ایک مجموعی سا تاثر ہے میرا اس غزل کے بارے میں۔ باقیہ احباب
जो है वो इस पे गुफ्तगू फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब साजिद साहब से, यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने, मुझे देख रहा हूँ मैं। तो नहीं अभी नहीं, मैं अभी जरा सुनूंगा कुछ जनाब साजिद, ठीक नहीं अभी नहीं, जरा हाँ। किसी और से कर ले, मैं जरा थोड़ा सुनूंगा। ठीक है। तो अल्ताफ साहब हैं। मैं बात कर चुका, नाम गलत डिस्प्ले हो रहा है मेरा, मैं बात कर चुका, हुसैन शाहजाद। ये बासित अली आजर। जी सर, बासित आजर। जैसे हुक्म मैं अपने ख्यालात अर्ज करता हूँ इस हवाले से। देखिए इस गजल में कुछ बात तो हो चुकी है और काफी वैलिड बात हुई है उस हवाले से। तो अमूमन हमारे जब खवातीन की लिखी हुई गजल या कोई तख्लीक हमारे पास आती है तो हम उसको दो पर्सपेक्टिव में परखते हैं, तानीसी हवाले से और वैसे अमूमी हवाले से। तो अगर तानीसी हवाले से बात की जाए तो एक बड़ी शदीद किस्म की रिवायत, मैं शदीद किस्म की रिवायत की बात कर, वो रोमानवी जज्बात के हवाले से, जिसने परवीन शाकिर साहिबा को बड़ी पजीराई अता फरमाई। तो उससे मेरा ख्याल है कि नुकसान जरूर हुआ है कि खवातीन जज्बात और अपने इन्हीं मज़ामीन पर बहुत ज़्यादा जोर देने लग गए हैं। तो दूसरे मुआशरती मज़ामीन अगर हम देखें तो कम अज़ कम मैं ये कहता हूँ कि औरत को ज़रा थोड़ा सा अगर खवातीन शोरा आती, अपने पर्सपेक्टिव को वसी करना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि बहैसियत और अगर हमने उन्हें अहमियत देनी है, उनकी तख्लीकात को अहमियत देनी है, तो वो एक मुअल्लिम ही हैं पूरे मुआशरे की। तो हम अगर तानीसी पर्सपेक्टिव को लेते हैं तो दूसरी ज़्यादती हमारी भी यही है कि हम जब तानीसी पर्सपेक्टिव लेते हैं तो हमारा भी रुझान है इन्हीं मज़ामीन की तरफ हो जाता है। तो मैं इस लिहाज से अपने तौर पे अपनी राय जो जिसके मैंने वजूहात भी पेश की उसे एक कमज़ोरी समझता हूँ, और वो कमज़ोरी मुझे इस गज़ल में नज़र आ रही है। बहुत सारे मज़ामीन हैं, मुआशरे का हिस्सा हैं, बराबर के हमारे वो इंसान हैं, हर चीज़ में उनका बराबर का हक है। तो इन मज़ामीन, इन मसाइल को भी उसी तरह हमारे बराबर आके उन्हें परखना चाहिए और बयान करना चाहिए और अपनी अहमियत को जताना चाहिए कि हम भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस एनालिसिस की दूसरे मज़ामीन की इस गज़ल में, ख़वातीन के अक्सर गज़लों में शार में कमी नज़र आती है। तो इस तासुर के साथ मैं आगे गज़ल की तरफ जाता हूँ। तो मतला ही अगर देखें, अंदर से अगर दिल का इशारा नहीं होता फिर कोई हमारा भी हमारा नहीं होता। सो मैं दूसरे मिसरे में फिर के लफ्ज़ पे मोतरिज़ हूँ। यहाँ पे फिर की जगह कोई और मुनासिब लफ्ज़ होना चाहिए था, फिर कोई हमारा भी हमारा नहीं होता। शायद तब अगर के साथ जो भी मुनासिब लफ्ज़ होता है उसके बजाय वज़न इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया, वज़न पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरा ख्याल है इसके मुतबादिल लफ्ज़ पे गौर करना चाहिए। और पहले मिसरे का पहला लफ्ज़ अंदर से, तो अंदर के अगर लफ्ज़ पे हम गौर करें, बहसियत कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तसव्वुर के लिहाज से मैं हमेशा पहले भी बात करता हूँ। तो कुछ एक पूरी के पूरी हमारे साथ आनी चाहिए, हमारे ज़हन में, और आती भी है। तो अंदर बातें, अंदरूनी ख्यालात, इंटरनल फीलिंग्स वगैरह सब कुछ। तो हम अगर अपने उर्दू की रिवायत से रुजू करें तो अंदर सिवाय हमारे अंदर का जो मरकज़ी हमारा दिल है, हम जब बाहर के माहौल, बाहर की मारूजियत की तरफ रुजू करते हैं तो हम दिमाग की बात करते हैं। अगर हम अपने अंदरूनी जज्बात की बात करें, दिल की बात करते हैं, उसका मरकज़ कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों, फिर का लफ्ज़ और अंदर का लफ्ज़, इस मतलब में थोड़ा सा मुनासिब महसूस नहीं होता, सवालात उठते हैं। दूसरे शेर की तरफ आते हैं। आंचल का तकद्दुस भी तो कर सकता है पामाल, बढ़ता हुआ हर हाथ सहारा नहीं होता। अच्छा शेर है, इस्लाही शेर। इसको इस्लाही हवाले से बड़ा अच्छा। आपके आगे मैं नहीं गया था। अच्छा, तो आंचल के लफ्ज़ पे जो एतराज़ हुआ, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम अगर अपने तारीखी तनाजुर की तरफ जाएं, लफ्ज़ों के इस्तेमाल की, उसकी तारीख के पीछे जाएं, तो चादर वाकई मुनासिब लफ्ज़ है जो मसूद भाई ने कहा, इस पे सोचा जा सकता है।
आंचल अगर मानी पूरे कर रहा है, वो बात दे रहा है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते ये मौजूद भी रहे तो कोई बात नहीं, मगर चादर शायद मुनासिब है। तो इस शेर से सरफ नजर करूंगा मैं। यहाँ पे कहीं इनसिक्योरिटी की बात हुई तो पूरी गजल में सिवाय एक शेर, इस शेर के मुझे और इनसिक्योरिटी का कोई तासुर ज्यादा नजर नहीं आया। ये शेर वाकई इनसिक्योरिटी का और उसमें इस्लाही पहलू ज्यादा नुमाया। तो और वो हमारे माशरती रवैये की तरफ भी इशारा करता है, जो मर्दों से औरतों को बेचारियों को खतरा लाक होता है, और हम हैं भी ऐसे, नो डाउट। तो हर शख्स को पलकों पे जगह दी नहीं जाती, हर शख्स हमें जान से प्यारा नहीं होता, वो तनीसी मौजूद। पलकों पे उठाए रखना, हथेली का छाला बनाना, वो मुहावरा वगैरह ही है। हर शख्स हमें जान से प्यारा नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा मुतासिर कुन बात नहीं है, वही रवानी में कहा हुआ शेर महसूस होता है। तो ज्यादा बात इस पे भी नहीं बन नहीं रही। अच्छा, आगे शेर आए कि बेवजह उदासी को मुसल्लत ना करो। दूसरे शेर में है, दूसरे मिसरा में है, इस गहरे समुंदर का किनारा नहीं होता। अच्छा, समुंदर का लफ्ज इस्तेमाल हो गया और आप मुसल्लत की बात कर रहे हैं। अगर आपने ऊपर मुसल्लत यूज किया तो साथ कुछ और कर लेते, या नीचे आपने समंदर किया है तो समंदर में उतरा जाता है, समंदर को मुसल्लत कौन करता है? और लफ्ज के इस्तेमाल की बात अगर हम करें, अगर समुंदर था तो ऊपर कहीं गहराई में उतरना, डूबना या इस तरह की कोई बात होती तो ज्यादा मुनासिब था। बेवजह पे एतराज हुआ, मैं भी उस पर मोतरज़ हूँ कि हो सकता है, और ये बात भी हमारी रिवायत में है, शायरी रिवायत में है कि कई बार उदासी का सबब नहीं भी होता, इंसान बेवजह भी उदास हो सकता है। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात नहीं। तो खैर, वो बेवजह उदासी ऐसे हो भी सकती है, इसके फेवर में बात जाती है। मगर यहाँ पे मुसल्लत और उसके साथ समुंदर और इस गहरे समुंदर का किनारा नहीं होता। तो आगे देखिए, गहरा और किनारा, जब आप किनारे की बात कर रहे हैं तो कहाँ आप तूल और अर्ज की भी तो बात करें। फिर लफ्जों के इस्तेमाल के अगर आप मिसरा कोई बन रहे हैं तो गहराई में है तो किनारा, तो नीचे तो आप तह की बात कर सकते हैं, गहरे समुंदर का किनारा नहीं है, उसके साथ गहराई है, किनारे की बात है, तूल अर्ज की कोई बात नहीं है कि समुंदर मुसल्लत हो रहा है। सो इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके साथ शेर को बनाना चाहिए। आगे शेर की तरफ आते हैं। खुददार भी होते हैं कई अहले वफा में, अहले वफा में कई लोग खुददार होते हैं। सबने ही तो दामन को पसारा नहीं होता। चले हम छूट दे लेते हैं, पाँव पसारना, दामन पसारना चल जाता है, आप लफ्जों को नहीं मानी देते हैं, मैं इस पे इतना एतराज नहीं करता। मगर ये देखें कि अहले वफा के साथ जो पहला मिसरा है वो अहले वफा की हमेशा खुददारी के ऊपर सवालिया निशान डाल रहा है। जरा मिसरे पे अगर गौर करें, गोया अहले वफा में खुददारी अमूमन अनका होती है, या शायद मुआशरे में ऐसा समझा जाता है कि अहले वफा लोग जो हैं वो खुददार नहीं होते। मगर जैसे उस पर एक एतराज किया जा रहा है कि आप शायद सभी को ऐसा समझते हो, मगर कुछ लोग ऐसे नहीं होते या कई लोग ऐसे नहीं होते। तो आप अगर किसी बयान की तरफ जा रहे हैं तो देखा जाए तो इसका जो जोन है, इसकी जो समत है, वो अहले वफा के साथ एक मनफी रवैया रखे हुआ है, उसकी जहत नेगेटिव है। तो अगर आप अहले वफा की तारीफ करना चाह रहे हैं तो पहले मिसरे को पॉजिटिव जोन में होना चाहिए। जो लोग लिंग्विस्टिक्स के बारे में जानते हैं तो हम देखेंगे कि ये अल्फाज जो होते हैं उनके माने एक से होते हैं, मगर उनका खानदान अलग होता है। कोई पॉजिटिव सेंस के होते हैं, कोई नेगेटिव सेंस के होते हैं। आप उन्हीं मानों में लफ्ज वही होते, उसके मीनिंग्स दे रहे होते हैं। मगर अगर पॉजिटिव मीनिंग देने हैं तो कोई और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव देने हैं तो कोई और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो शायरा को भी गौर करना चाहिए कि जो उसका पहला मिसरा है वो पॉजिटिव जोन में नहीं जा रहा। सबने ही तो दामन को पसारा नहीं होता, अब सबने ही तो, ठीक है, अब ये ना करेक्शन दे रहा है पूरी। ये एक जम का पहलू कह लें, मजहूलियत कह लें, इसके हवाले से सबने ही तो ना बहुत एक फिक्स आपको दे रहा है, एक जैसे अंडरस्टूड बात है, फाइनल एनालिसिस है, स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसके हवाले से होता सबने ही तो दामन को पसारा नहीं होता। तो आप इस शेर के ऊपर अगर आप मजमून वो बरतना चाहते हैं तो इसको देख लें। अपनों के रवैयों से भी थक जाता है इंसान, खामोश जो होता है वो हारा नहीं होता। आई थिंक पहला मिसरा, मेरा ख्याल है कि पहला मिसरा जो है वो किसी और मजमून का है, जैसे 2 लाख है, और दूसरा जो मिसरा है वो किसी और मजमून के साथ होना चाहिए। हारना जिद्दोजहद के साथ है, मेहनत के साथ है,
अपनों के साथ, मतलब कि अपनों के साथ जंग की तरफ इशारा है, तो मजमून को और वाज़ेह होना चाहिए, कोई ऐसी वजह भी होनी चाहिए। हम कहते हैं शायद ये एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कहते हैं कि जब भी आप कोई बात बयान करना चाहें तो सीक्वेंस में उसकी वजूहात भी होनी चाहिए एक्शन की, तब वो जस्टिफाई होता है। तो मेरे ख्याल नज़म से ज़्यादा गज़ल के शेर में उसकी असल ज़रूरत होती है। आप जब कोई लफ्ज़ बरत रहे हैं, उसके कोई मानी है, आपके पास बड़ी महदूद किस्म की चॉइसेस हैं, तो आप जब लफ्ज़ों को बरतते हैं, अपने मानी लेके आए, तो उनकी कुछ रीज़न, उसकी वजूहात जो हैं वो बयान होनी चाहिए। अब अपने रवैयों से थक जाना, खामोश होना है, वो हारा नहीं होता। आई थिंक ये शेर जो है ये काफ़ी हद तक दो लख्त होके ना अपने मज़ामीन और मफ़हूम को ना उसी तरह उलझाव का शिकार कर रहा है। आखिरी शेर की तरफ आते हैं। मुमकिन है तेरी आंख का धोखा हो, ये मुमकिन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। हर चीज जो रोशन हो सितारा नहीं होता। चीज के लफ्ज पे जरा ध्यान दें। हर चीज, सितारा, फिर वही बात है, आप लफ्ज इस्तेमाल करें तो आप उसका जोन भी देखें। सितारा फिजा की बात है, हाइट की बात है। हर चीज जब आपने इस्तेमाल कर लिया तो मेरे हाथ में पड़ा था मोबाइल भी चीज है, मेरी ऐनक भी चीज है। सितारे के साथ अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को उसके साथ अगर आप मीनिंग दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो सितारा के इस इस्तेमाल पे जरा गौर करना चाहिए। अगर आप सितारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके जोन का भी ख्याल रखें, कहीं फिजा की बात करें। ठीक है, सो ये हमारे सामने गजल है। इसमें जो कुछ भी सामने है, क्योंकि फौजी साहिबा को भी जानता हूँ, बड़ा अच्छे अशार कहती हैं, और मैं चाहता हूँ वो और ज्यादा अच्छे अशार जिनमें फिक्री और लफ्जों के इस्तेमाल के हवाले से, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, जो मेरे अशार में बहुत सारे होंगे, मगर जितना जिस हद तक आप कम कर सकते हैं नहीं चलता, उतना कम से कम किया जा सके। तो मेरी इन तमाम बातों को मैं सिर्फ उस चीज पे नजर कर रहा था कि जिससे वो शेर बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। इससे हटके तानीसी हवाले से, उनकी करेज के हवाले से, हमारे जो शायरात हैं खुद लिखती हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, उनके लिहाज से कम अज कम बहुत अच्छी गजल है। और मजीद मेहनत के साथ डेफिनेटली वो शायरात में कोई नुमाया नाम बन सकती हैं। तो मैं इन अल्फाज के साथ अपने ख्यालात को मुकम्मल करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ अपनी बात के हवाले से। शुक्रिया। साबित सदारत, शाहिद अशरफ बात कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ। सादिक जमील साहब को अनम्यूट करें जरा। सर वो अनम्यूट है। जी सादिक साहब बात केस कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही थी। कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है उनकी तरफ से। हैंड फ्री सादिक साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आप अगर हैंड फ्री को उतार के ट्राई करें तो। इसका माइक क्लिक कर लें। माइक को अनपिन कर लें आप, हैंड फ्री को पिन उतार लें इसकी। मेरे ख्याल में शायद अशरफ साहब बात करना चाह रहे हैं, इसको इजाजत ही समझा जाए। हाँ जी, हाँ जी। जी साबित सदारत, मैं इस गजल पे चंद कहना चाहता हूँ। बासत साहब ने बहुत उम्दा इजहार कर दिया है और बहुत सी बातों की निशानदेही की है। अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही साबित सदारत। जी मैं बात करूं साबित सदारत? जी जी बिस्मिल्लाह इरशाद जी। साबित सदारत, मैं मजमूई तासुर देना चाहता हूं। एक एक शेर पे तो जी, दोस्तों ने बात करनी है।
लफ्ज़ की नफ्सियात, लफ्ज़ों की तरतीब, मिसरों का तलास्मा और जी जी मौजू पे गिरफ्त जो है वो हमारी शायरी का खासा रहा है और इसमें जी दो जी राय भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे वो सारे नए लिखने वाले जिन्होंने रोमानी मौज़ूआत या मज़ामीन से आगाज़ किया है, उनके यहाँ बहुत से जी जी दूसरे शोरा की बाज़गश्त भी सुनाई देती है और दस्तकें भी आती हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर किसी को परवीन शाकर का किसी और शायरा का रंग या मौजू या मज़मून दिखाई दे रहा है। ये कि शायरा चूँकि उन तमाम मौज़ूआत का अहाता कर रही हैं जो सारे लिखने वालियाँ जो है वो करती हैं, तो उसमें एक तरह की यकसानियत मौजूद होती है। वो सारी बातें जो हमने कह दी हैं या दोहरा दी हैं, आने वालों ने उन्हें अपने अंदाज में लिखना है और दोहराना है। हिज्र वसाल के सारे किस्से, दर्द गम जा रही है फूल, गीत गाते परिंदे या फिर आसमां पे कोसे कज़ा, सब कुछ नए अंदाज से नए लिखने वालों के शेरों। अगली बात ये कि जो आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो शायद अख्तर साहब की आवाज कट रही है। आवाज कट रही है उनकी। हेलो हेलो जी शायद अख्तर साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके सिग्नल्स का शायद कोई इशू है। आवाज नहीं आ रही जी, बिल्कुल। हाँ जी, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट आवाज भी हो नहीं आ रही। वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। और किसी और दोस्त को दावत दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी, मेरे साथ साजिद साहब हैं मेरे सामने, मसूद साहब हैं, मसूद रहमान साहब हैं, हमारे साथ मुनीर अनवर साहब भी हैं, उस्मान नाजिर हैं, मकसूद वफा साहब हैं, कबीर अतहर साहब हैं, जिन्होंने भी बात नहीं। तो जिनको मुनासिब समझे आप उसे कह दें जरा, बल्कि आप तो चूंकि आप सब दावत, मेरे ख्याल में दावत आम है, जो चाहते हैं बात करना वो कीजिए। मुनीर अनवर साहब सुन रहे हैं काफी देर से। जी मैं सुन रहा हूँ। मैं अर्ज किए देता हूँ कुछ जनाब सदर की इजाजत से। गजल पर हर पहलू से बात मेरे ख्याल में हुई है, दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है। सारा सिलसिला एक एक मिसरे पर बात हुई, लफ्जों पर बात हुई। मैं जब इस गजल को पढ़ रहा था टोटल, तो मुझे यूं लगा कि जैसे पहले 3 अशार किसी और शख्स के हैं और बाद वाले 4 अशार किसी और के हैं। इसकी क्राफ्ट इनकी तीनों की और बाद वाले 4 की क्राफ्ट मिलती नहीं है। वो महसूस नहीं हो रहा कि किसी एक ही शख्स के एक ही जगह पे लिखे हुए अशार है। तो ये शायद शायरा की कोई कैफियत ऐसी कि कोई इस तरह उसने वो किया, पहले 3 अशार कहीं और लिखे किसी कैफियत में और फिर वो 4 जो है वो बनाए उसने। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल मुझे महसूस हुई, मेरे तासरात हैं इसमें। बाकी बात हो चुकी है कि अंदर से अगर दिल का इशारा नहीं होता फिर कोई हमारा भी हमारा नहीं होता। अंदर से अगर दिल का इशारा, वो आजर साहब ने बात की कि अंदर से दिल का इशारा होना कोई बड़ी अजीब सी बात है। अंदर से अगर कोई इशारा नहीं होता या कोई और इस तरह की बात की जा सकती थी, तो वो एक वही अंदर वाली बात के बातन से और वो सारा सिलसिला आ जाता। आंचल का तकद्दुस भी तो कर सकता है पामाल,
बढ़ता हुआ हर हाथ सहारा नहीं होता। बहुत अच्छा है। पहले मिस्र में आंचल का तकद्दुस भी तो हो सकता है पामाल, या कोई इस तरह की, या आंचल के तकद्दुस को भी कर सकता है पामाल। अगर होता तो ज्यादा वाज़ेह हो जाता। वो जो पहला मिसरा कंफ्यूज कर रहा है, मुझे कम अज कम किया उसने, वो इसमें नहीं होता इस तरह की सूरत है। हर शख्स को पलकों पे जगह दी नहीं जाती, हर शख्स हमें जान से प्यारा नहीं होता। मुझे अच्छा लगा ये शेर। बेवजह उदासी को मुसल्लत न करो तुम, दोस्तों ने बात की, तुम बिल्कुल गैरजरूरी लगता है लेकिन वजन पूरा करने के लिए उसे डाला गया है, वो मजबूरी थी। इस गहरे समुंदर का किनारा नहीं होता, गहराई का और किनारे का ताल्लुक भी चले बनाया जा सकता है। जैसे अभी एक दोस्त ने कहा भी था कि अगर वसत के हवाले से बात होती और किनारा होता तो फिर वो ज्यादा बेहतर महसूस होता। खुददार भी होते हैं कई अहले वफा में, इस पर भी बात हो चुकी है कि अहले वफा में जो है वो कुछ ज्यादा मुनासिब महसूस नहीं हो रहा। सब ने ही तो दामन को पसारा नहीं होता। पसारा पर भी बात हो चुकी। पसारा मुझे इन मानों में इस्तेमाल करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। मैं नहीं समझता कि इसे पसारा एक इस तरह फैलाना होता है किसी चीज का, हाथ या पांव या कोई भी चीज, तो जगह को घेरता है वो। तो वो जब घेरी हुई जगह जो है उसे हम पसारना, टांगे पसारना या पांव पसार के बैठना या कोई इस तरह का कोई सिलसिला होता है। ये जिस मानों में यहाँ इस्तेमाल हुआ ये शायद हो तो सकता हो लेकिन भला मालूम नहीं हो रहा था। मतलब मुझे ये इन मानों में सजता महसूस नहीं हुआ। अपनों के रवैयों से भी थक जाता है इंसान, खामोश जो होता है वो हारा नहीं होता। पहले मिस्र में बात ठीक की, अपनों के रवैये से भी थक जाता है इंसान, खामोश जो होता है वो हारा नहीं होता। दूसरे मिस्र में एक जनरल स्टेटमेंट दे दी उसने, जैसे अभी दोस्तों ने बात की भी कि ये जो है ये कंफर्म स्टेटमेंट देगी कि हर वो शख्स जो खामोश होता है वो हारा हुआ नहीं होता, जबकि ये बात एक खिलाफ वाक़ा होगी। मुमकिन है तेरी आंख का धोखा हो ये फौजी, हर चीज जो रोशन हो सितारा नहीं होता। बात हो गई इस पर भी, और बड़ी खूबसूरत बात थी, चीज के साथ वो ग्रामेटिकली वाकई सितारा नहीं होता, बात बनती नहीं है उसके हवाले से। तो ये मुख्तसर सी थी। यो भी सबसे पहले हमारे जो दोस्त आए उन्होंने कहा कि हौसला अफजाई जरूरी है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। कोई और दोस्त बात करना चाहें? अच्छा, एक बात अब आपसे गुजारिश है, जो बातें पहले हो चुकी हैं मेरे ख्याल में उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई बात आप कहना चाहते हैं तो जरूर इरशाद फरमाएं। तो जो बातें हो चुकी हैं मेरे ख्याल में वो तो बहुत बार बार हो चुकी है। हाँ जी, कोई और दोस्त? हेलो, बाबर अली असद हैं, डॉक्टर कबीर अतर हैं, मकसूद वफा साहब हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। जी जी, मेरे ख्याल में अगर बाबर अली असद बात करना चाहें तो पहले कर लें। जी बिस्मिल्लाह। बाकी तो सीनियर हैं दोनों दोस्त। म्यूट है आप। नदीम मलिक भी मौजूद है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं वो, तो उन्हें भी दावत दी जा सकती है अर्शद साहब। जी जी बिल्कुल। बाबर असद मैं डॉक्टर कबीर अतर मकसूद वफा साहब के ना सुनना चाहूंगा उनको। मुझे बेहतर है कि वो बात करें। तो नदीम मलिक से कह दें। जी जी, नदीम मलिक सुन रहे हैं? नदीम मलिक, आपको आवाज आ रही है? आप बात करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आवाज मुझे आ रही है, मैं सुन रहा हूँ जो गुफ्तगू की जा रही है। तो तो हाँ, तो बात कर दें यार। नदीम बाबा बात जी कर रहे हैं ना आप? नहीं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ चीजें नोट कर रहा हूँ इस गजल में जो बातें की जा रही हैं उन्हें दोहराने से, जो चीजें दोहराई गई हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ। मुझे जो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, वो यहाँ पे ये है कि हर शख्स को पलकों पे जगह
मैं इस शेर अटका हुआ हूँ और काफी देर से इसी एक शेर को नोट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज पलकों पे जगह दी नहीं होती। यहाँ पे जो पे है ना, पे, पलकों पे, यहाँ पे पे जो है ना वो अजीब सा लफ्ज मालूम हो रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि हर शख्स को दिल में तो जगह दी नहीं जाती, दिल में तो जगह दी नहीं जाती हो तो ज्यादा बेहतर था मेरी राय में। हर शख्स हमें जान से प्यारा नहीं होता। जैसे हम दिलो जान का जिक्र करते हैं तो शायरी में, तो पलकों पे जो लफ्ज पे है ना, मुझे इस पे खासा एतराज है। और कुछ दोस्तों ने जो पहले बातें की हैं उन्हीं को दोहराना बेहतर नहीं है। बाकी लफ्ज तुम पे काफी लोगों ने एतराज उठाया है यहाँ पे। और मुसल्लत, जैसे कहते हैं जी फलां चीज पे फलां इंसान को कर दिया गया। इसमें जो मुनीर अनवर साहब ने कहा कि गहरे समंदर का किनारा, तो इसको वाकई में ये भर्ती का है और किनारे के साथ समुंदर, गहरे समुंदर को जो है ना वो जोड़ा गया है। तो इसमें कोई बात नहीं बनी। अगर इसको पहले मिस्र को तुम की जगह अब कर दिया जाता तो जो तुम का लफ्ज है ना भर्ती का, क्योंकि ये अलग से टुकड़ा इसमें से लफ्ज इसमें आ गया तुम। जैसे कहते हैं कि ए, वो, तुम, वो, ETC फला फला, तो इसी तरह। बाकी अहले वफा खुददार भी होते हैं कई अहले वफा में, या यहाँ वफा में लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक मालूम होता है। कोई भी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रवानी मुतासिर नहीं होती, बिल्कुल रवा है। तो सामने ही तो दामन को पसारा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज पसारा को काफी दोस्तों ने जो है ना दामन को पसारा के हवाले से बात की है। तो ये इसमें जो चीज है ना वो शायरा ने ये चीज इस्तेमाल जो किया काफिया, इसकी मजबूरी है कि जो दामन को पसारने के साथ जो इस्तेमाल किया गया पसारा काफिया, ये मजबूरी के मुताबिक गिर जाएगा, गिर जाएगा। बाकी जी मैं जो है ना वो अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है नदीम, आवाज आ रही है आप जी। वही मैं देख रहा हूँ काफी देर से ये चीज को मैं नोट कर रहा हूँ। तो मैं खुद कबीर साहब को सुनना चाहूंगा कि इस इस्तेमाल का जो है ना वो गलती है, इस्तेमाल की जो लफ्ज धोखा इस्तेमाल यहाँ पे लिखा गया है। बाकी ठीक है, वो जो भी है, नई शायर आपके लिए ये खासा मुश्किल भी है। और बाकी ये सेशन जाहिरी बात है कि इस पे कसौटी भी होगी और नरमगी भी होगी। तो बाकी मैं कबीर अतर साहब और मकसूद वफा और आपको बेहतर समझता हूँ कि आप जो बातें इस पे करेंगे, तो मैं तो आपको सुनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने जो अर्ज करना था वो मैंने कर दिया। हाँ जी, तो मैं मकसूद वफा साहब से मुल्तमिस हूँ। मकसूद वफा साहब से बड़े प्यारे दोस्त हमारे। क्या क्या कुछ बातें तो मैंने सुनी है और पहले क्या बातें हुई हैं। सर माइक करीब कर लें। जी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, बेहतर हुई है आवाज। तो हाँ जी आवाज, जी आवाज सामने है इस पे। जी आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही जी। जी जी, तो इस गजल पे जो बातें हुई हैं काफी माकूल बातें हुई हैं जो मैंने सुनी। और अगर हम इस गजल का और शायरा का जायजा लें तो और भी बहुत सी बातें जो है वो ज़हन में आती है। मेरे सबसे पहली बात जो मेरे ज़हन में आई है, क्योंकि ये दूसरा मुसलसल हफ्ता है कि खातून की गजल पेश हो रही है, लेकिन जब हम शायरी पर बात करते हैं तो इसे सिर्फ मर्दाना या जनाना गजल नहीं कहना चाहिए। ये मेरा एक यानी
ऐसी जरा माइक करीब कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, पूरी साफ नहीं आ ऐसी चीज है कि इसको शायरी में कोई मर्दाना या जनाना डिब्बा नहीं होता है। शायरी शायरी हाँ, ये जरूर है कि अभी फौजिया साहबा ने बहुत ही कम वक्त में जो है वो शायरी का उनका जो वक्त है वो बहुत कम है, अरसा बहुत कम है, और इसी अरसे में ये 4-5 सालों में उनकी किताब भी हमारे सामने आई है, और मुझे ये एजाज हासिल है कि इसका फ्लैप भी एक मैंने लिखा है, और जो उस वक्त चीजें मेरे सामने उनमें भी अभी मुझे ये जरूर दिखाई देता था कि अभी इनके सफर का आगाज है, और ये जो थोड़ा सा अरसा गुजरा है उसमें उन्होंने अपनी जगह तो शायरी में बहरहाल बनाई है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये है जो इस गजल के हवाले से है कि जो दोस्तों ने इशारा किया है जिस दौर में वो दुरुस्त अच्छा, अगर दुरुस्त है तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ऐसी गलतियां हमसे होती हैं। मैं जो इन चीजों का जवाब अगर सबसे पहले मैं तलाश करता हूँ या ढूंढता हूँ तो उसका एक ही जवाब हमेशा मुझे मिला है कि हम थोड़ी सी जल्दी में अगर इस एक हर चीज का एक दौरानिया होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, तो ये टाइमिंग जो है ये भी एक चीज है जिसको या तो हम पहले कह देते हैं या वो वक्त गुजर जाता है तो फिर बाद में कहते हैं कि वो कैफियत जो भरपूर कैफियत होती है उसको बसर करने में अभी कुछ देर और चाहिए होती है। यानी ये एक आसान सी एक बात है जो मेरे जहन में आती है कि कैफियत इसमें है, इसका जो बात वो कहना चाहती हैं लफ्जों के